बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानूर वज़ीर कतुन को ज़प पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यमा नन बद पार्लिमानी मेंबरानों सरा चकुम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान जेल बरो तहरीक ऐलान करे दे पदे हवाला सरा बादुई सरा खबरें कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान दे जेल बरो तहरीक पे ऐलान बादे दुई सा नजर लरी। आया इमरान खान ता अवालाना खपला गिरफ्तारी वर कावल पकार दा या दे कारकुनानो दे दुई वर मशवरा सदा हकीकी आज़ादी लांग मार्च और बिया चुकुम दे असम्बली दे तहलावलो मामला दा और वो चुकुम दे जेल बरो तहरीक थे आया दे दुई पख्याल बंदे इमरान खान ता दा देना फ़ायदा मिलाव शवेदा या फ़ायदा बा वर्ता मिलावशी पदे मुख्तलिफ सीज़ों बा दे पार्लिमानी मेंबरानों सरा खबरें कहूँ राज़ई दे मुंग सरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान जेल बरो तहरीक दे ऐलान पर हवाला सो नज़र से दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल यो जमहूरी अमल ले खुदा पदे वक्त के जमा ख्याल नहीं कि जगह चे दी खो د जेल عادت نه دي نو هسې به دا به ډېر ناکامۍ طرف ته به دوی لاړ شي. دا ټولې فیصلې را روانې غلطې فیصلې وکړې او بیا یې سملوغ ما ته دا کوو دا کوو دا کوو نن تاریخه پورې لکه هغه ټولې دا هم یو ډېر زیاته د دوی غلطه فیصله ده ځکه چې جیر بل تحریک خلکو کوو چې باچا خان بابا کله رالو نو په خپله مخکې ته شو او په هغې کې پسې زرګونو خدای خدمتګار لاړ او جیلونه ډک کړه هغوی سره په جیل کې ځای نه و. نو مطلب دا چې په وخت باندې دغه شان تحریکونه چلېدلي خو دا خبره ده چې په دې لپاره زما خیال نه کېږي که دا سوټ کوي. په دې وجه باندې موږ عمران خان صاحب ته دا اپیل کوو چې یو یوټن د بل والي هسې هم د یوټن خو هغه دغه یي نو په دې کې وخت کې د نور مطلب دی چې دا خلک نه پازابوي. آیا عمران خان ته اولنۍ خپله ګرفتاري ورکول پکار ده یا د کارکنانو ستاسو ورته مشوره څه ده؟ نه نو دغه خو دا چې اول لیډران دغه ورکړي که نه نو کارکنان د هغې نه متاثر شي د هغې نه یو اثر واخلي هغې بیا مطلب دی چې هغې په خپله باندې په خپل لیډران پسې جیل ته روان شي ځکه چې د هغې یو حکم دی یو ایجیټیشن یو جیل برو تحریک ایجیټیشن کې به دی هم مخکې او خلک به ورپسې او جیل برو تحریک هم دوی مخکې مشران او کشران به ورپسې جیلونو ته به ځي. حقیقي آزادي لانګ مارچ او بیا د اسمبلی د تحلیلولو معامله او اوس جیل برو تحریک د دې نه د ستاسو په خیال باندې عمران خان ته فایده میلاو شوې ده یا فایده به ورته میلاو شي؟ په دې باندې یوازې عمران خان ته نقصان نه وشو بلکې ملک ته ډېر زیات نقصان ورسېد زمونږ معیشیت ته ورسېدو نقصان زمونږ چې کوم دی نو اسټیبلیټي زمونږ امن و امان ته د دې نه ډېر زیات نقصان وشو او د دې جیل برو تحریک کې به دی نور هم زیات ایکسپوز شي. ګوره دا یو خبره ده په کار چې دا واپس والي. جیل برو تحریک نه د ستاسو په خیال باندې ملک ته څومره نقصان دی؟ نو د جیل برو تحریک نه خو هېڅ نقصان هم نشته دی ځکه چې دوی خو جیل ته ځي نه او بس چې کوم دغه دی البته د معلومات به دا وشي چې دوی کوم کارکنان دي هغوی به هم دا ځای نه سره په دغه باندې لګیایي په سوشل میډیا باندې او اوس به چې موږ لاړو موږ رالو دا به وایي نو په سوشل میډیا خو جیل نه ډکېږي. پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان چې کوم د جیل برو تحریک اعلان دی په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ نو د هغې نتیجه به هم دغسې راوځي لکه قومي اسمبلي نه استعفا ورکړو بیا واپس راله د هغې نتیجه به هم دغسې وځي څنګه چې پنجاب حکومت ختمه کړه تحلیل کړه خیبر پښتونخوا حکومت ختم کړه او اوس چې دی نه وایي چې دا موږ نه غلطي وشوه د هغې غلطۍ ازالې وکړو سبا به هم دقه وایي چې یاره جیل برو تحریک مونږ غلطي کړې وه او دې نه بیا راوتل پکار دی بیا د رها کرو هغه نارې بیا ولګي که نه جي فلان کو رها کرو فلان کو رها کرو نو دا چې دی دا یو سړی فرد واحد دا فیصلې کوي هغه عمران خان دی او چرته هم چې فرد واحد فیصله وکړي مشاورت نه وي نو هغه ځای کې یقین وګڼه چې هغه ناکامۍ سره دوچار وي. عمران خان ته اولنۍ خپله ګرفتاري ورکول پکار ده یا د کارکنانو د ستاسو ورته مشوره څه ده؟ ګوره چې ته په خپله ګرفتاري نه ورکوي او نورو ته وایي چې مخکې ورشه نو هغې کې خو بیا مزه نه وي. مزه خو په دې کې چې ټول نه مخکې دا مشران دا 15 کسان دا چې کوم مشران دي دا د مخکې ګرفتاري ورکړي هغې نه پس به بیا کارکنانو کې جذبه به پیدا شي. حقیقي آزادي لانګ مارچ او بیا چې کوم د اسمبلی د تحلیلولو معامله وه او اوس جیل برو تحریک د دې نه عمران خان ته د ستاسو په خیال فایده میلاو شوې ده یا فایده به میلاویږي؟ یاره زه خو وایم چې سراسر نقصان کې لاړه هغې وجه دا ده چې ګوره دا خلق یو د نظریاتي کارکن هغه ډېر کم یو هغه خلق دی چې هغه ووټر دی نیوټرل خلق دی او دغه خلق د خپل د مسایلو د حل دپاره یو کس سره یو پارټۍ سره هغه منسلکي او چې کله د پارټۍ مسایل په خپل مسایلو کې راګیري نو بیا هغه خلق چې دی هغه تانه تتر بتر شي نو دا نقصان دی د پارټۍ دپاره. برو تحریک لپاره دوی باقاعده رجسټریشن شروع کړی دی تاسو خیالات څه دي؟ نو دا خو ښه خبره چې مخکې نه حکومت ته معلوم وي چې دا کسان پکې راځي موږ ته معلومات به وشي. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کا जेल बरो तहरीक के ऐलान के हवाले से आप क्या कहेंगे?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तो जी कल अपना वीडियो मैसेज डाल दिया था कि मैं हाजिर हूँ। सेनेटर्स में सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाए, सबसे पहले मुझे पकड़ा जाए जिनको पकड़ने का शौक़ है, क्योंकि हम तो खुल के बात करते हैं, इज़्ज़त लोगों की रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए सब इज़्ज़तदार हैं। मगर जो काम इनके गलत हैं, जिस तरह ये पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, आज से नहीं 70 साल से लगे हुए हैं ये, तो हम इनका हिसाब लेने निकले हैं। और मैं ये चाहूँगी कि इस पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं, 77% केपी में और 66% बाकी पाकिस्तान में 30 साल की उम्र से कम है, तो इन नौजवानों को और हम सब को अपना कर्ज अदा करना है मुल्क का वापस। हिसाब लें, ये जितने लोग हैं, थोड़े से अशराफियाँ, इनका गरेबान और हमारा हाथ होना चाहिए। और ये सड़क पे बाहर ना निकल सके, पब्लिक में निकलें तो इनको पूछें कि तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्यों हमारे पैसे तुमने खाए हैं, क्यों हमारे मुल्क को तुमने इधर इस हालत पे ले गए हो। 9 दिन के इनके IMF से मुज़ाकरात हुए, उनमें से ये इतना नहीं कर सके। आपने देखा कल तस्वीर इसहाक डॉलर साहब की और आयशा गौस पाशा, इतनी बड़ी बड़ी स्माइल्स थी उनके चेहरे पे, जैसे उन्होंने हिंदुस्तान फतह कर लिया है। और हालत ये है कि IMF उनके साथ मुज़ाकरात ही कामयाब नहीं कर सके। तो ये क्यों मुस्कुरा रहे थे? इसलिए क्योंकि उनका एजेंडा पूरा हुआ है। वो पाकिस्तान को आप अगले 3 हफ्ते में देखेंगे किस नहज पे लेके जाएंगे, ये क्या क्या कमिटमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी, बेसिस आप देंगे हमें। देखें, दूसरे ममालिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करते हैं। मसला अपने मुल्क में है, मसला अपने लोगों में है, जो बिकते हैं, जो ज़ाती मफाद के तहत मुल्क को गिरवी रखते हैं, इन लोगों को हमें हिसाब लेना चाहिए। मौक़िफ़ है कि गरीब तबके को रिलीफ देंगे। उनका मौक़िफ़ है कि गरीब तबका कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए गरीब को छोड़े, उनके लिए 22 करोड़ अवाम की कोई हैसियत नहीं है। उनके लिए सिर्फ आप 100-200 जो भी अशराफी हैं जो पुग जाते हैं, उनके पीछे 4 और आ जाते हैं। अपनी मौरूसी सियासत, अपने केसेस, अपने बाहर जायदादें, अपने बाहर पैसे और पाकिस्तान को खोखला करना, ये इनका नस्बुल-ऐन है। और अपनी गाड़ियाँ, अपने झंडे। चेयरमैन PTI इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए या कारकुनों को? आपका मशवरा क्या है और आप सबसे पहले गिरफ्तारी देंगी? मैंने तो देखे जी, मैंने पब्लिक में डिक्लेयर कर दिया, अब आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कारकुन और लीडर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बराबर सबको देनी चाहिए। चेयरमैन इमरान खान को हम इसलिए नहीं कहेंगे वो दें क्योंकि वो एक आदमी है जो खड़ा हुआ है, जिसके पीछे लोग खड़े हुए हैं। तो चेयरमैन इमरान खान हमारे लिए सोने से ज़्यादा कीमती हैं और हम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान, मुल्क के लिए, अपने मौक़िफ़ के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार हैं। क्योंकि और क्या, जान तो जानी ही जानी है, एक दिन किसी अच्छे मकसद पे चलेगी तो वाह वाह। की आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना और अब जेल बरो तहरीक, तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला या फ़ायदा मिलेगा? देखें जी, फ़ायदे की बात नहीं है। देखें ना, इस वक्त ना हम हुकूमत में, हमने जो हुकूमतें थी वो भी छोड़ दी, तो हर तरह से घाटे का सौदा किया। तो अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमतें छोड़ दी। ऑफ कोर्स मुल्क की अपनी बेहतरी, अपने ये तो प्रूव किया ना खान साहब ने हर मौके पे कि ज़ाती मफाद के ऊपर उन्होंने मुल्की मफाद को तरजीह दी। इसी वजह से रिजीम चेंज हुआ। जो अहलकार थे दूसरे लोगों के, जो वहाँ से मफादात लेते हैं, उनको ये हज़म नहीं हुआ। इंशाल्लाह जेल बरो ना मुंगबा आ कारुना हुकू चा हुकूमत हुई चे जेल सदी मुंगबा पुलिस है ना पकुरुनु के किनु का जेल डक्शी मुंगबा दे पुलिस पकुरुनु के नासु है ना नो इंशाल्लाह दा बॉर्डर कामयाब तो तारीख खपल रजिस्ट्रेशन करे दे और कारकुनानो ता दे रजिस्ट्रेशन पे हवाला पैगाम सला रहे बस वो रवानियो और मसा रजिस्ट्रेशन पगा के दे मोबाइल के दे व्हाट्सएप का पे बस नो उस मुंगा आगा शुरू को करना मुहिम शुरू को वो डी खान तो बज़म नन डी खान ता में प्रोग्राम दे नो इंशाल्लाह पूरा गबा भी करना तासो पे मुकम्मल तोगा तैयार है। आया इमरान खान ता अवलाना गिरफ्तारी वर्कावल पकार दा या कारकुनानो ता तासो सा नजर अवल कारकुनान ता पकार दे अवल आखिर दा दे राशि करना which है मुंग लीडर दे और उस बा गन मन बदया सपा कवी नो अवल पकार दे कारकुनान ने मुंग दे खल्क पार्लियामेंटेरियंस दी MNAs दी सेनेटरान दी MPs दी या गादी अवल पकार दे मुंगा कुर्बानी वर्को हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और बिया दे असम्बली दे तहलील अवल मामला और वो जेल बरो तहरीक द देना PTI और ख़ास कर चकुम इमरान खान साहब ने आगे तक देना सुमरा फ़ायदा और सेदा या फ़ायदा में मिलावी की इंशाल्लाह खबर अदा दे करना चे
आवाई च देर आयत दुरुस्त आयत इंशाल्लाह आखिरी बदे आवाम पगा के हकीकी आज़ादी बवी एदप होगा के एदप क़यादत के बाद हकीकी आज़ादी बवी और द खल्को हकूक न अलावा द मुल्क द बचकवलो और द मुल्क इकोनॉमी दुरुस्त कवलो सिर्फ द 10 सरा इलाज था नूर सरा इलाज नश्ता द उस सेंचुरी वही देख दे द मिनिस्टरानो सुमरा फाइनेंशियल क्राइसिस दे पदे के चुकुमा वफाकी कबीना मतलब तादाद के वरस पर वरस इजाफा रवाना था और दिन अलावा चुकुम द गरीबानान खल को हालात मतलब हालाती अगा इंतहाई ख़राब दी द गरीबानान द खल को द पारा दुई हवाई चमुंग इकदाम चता उससे इकदाम तासु पर नजर राजी ना जी इकदाम को मुंग शे न वीनू नन गरीब ता चदे का ना वड़ा हो रोटे दुमरा रोटे 25 रुपये मिलावेगी एक गरीब सेड़ी चश्पर वो बची हुई वो दिहाड़ीदार भी वो 10 से दिहाड़ीदार से दिहाड़ी ना वर्ता मिलावेगी आ गरीब ऐसा कभी न दा मुल्क ऐसे सिविल वार्ता दा नगा कभी लूट मरता दे नगा कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम है जेल के लिए अगर वो तैयार हो जाए। अब तो 3 दिन के जब वो 3 दिन जेल चले जाए तो मेरे ख्याल में रोने धोने और फरियादें करने का वो हादी है। अब तो मेरे ख्याल में बहादुरी का काम है, निकल आए जेल भर दे खुद, लेकिन सबसे पहले वो खुद जेल चले जाए। 3 दिन वाला जेल नहीं होगा। अब तो तकरीबन जिस तरह दूसरों के साथ किया गया है, जिस तरह असफ अली जरदारी जिन्होंने 13 साल जेल गुजारा है, 13 दिन गुजारे तो हमें मंजूर है। कुर्बानी वाला लोग है नहीं, वैसे ही बातें करेंगे, प्रेशर डाल रहे हैं, वरना निकल आए जेल क्यों कब करेंगे। बाकायदा रजिस्ट्रेशन हो रही है तो क्या इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए या कारकुनों को? आपका मशवरा क्या है उनके लिए? पहले लीडरशिप चले जाए, कारकुन क्योंकि कुर्बानी का बकरा है। पहले लीडरशिप आ जाए, वहाँ जेल में चले जाएंगे, वहाँ उनके लिए सहूलियात, उसकी वजह से जब वो जेल में होंगे उनके कारकुन आएंगे तो उसके वजह से उनको सहूलियात भी मिलेंगी। जेल बरो तहरीक और इससे पहले हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना, क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला है या फ़ायदा मिल रहा है? मेरे ख्याल में इमरान खान किस्सा पारीना बन चुका है, कोई फ़ायदा इनको नहीं पहुँचा है। वो ज़द्दी आदमी है और मेरे ख्याल में जो ज़द उन्होंने किया है उनके गले में फंस गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने ऐलान किया है जेल बरो तहरीक का, क्या कहेंगे आप? ये आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। आप क्या देख रही है, क्या ऐलान अच्छा है? और क्या ये है, हम लोग तो बस चाहते हैं आजकल हालात देखें ना क्या हो रहे हैं, कितनी पावर्टी है। मैं बदीन से हूँ, सिंध से हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा तो हम लोग को तो बस ये होता है कुछ ऐसे काम हो जिससे ये पावर्टी ख़त्म हो, जिससे तो और खौफ आ रहा है आजकल है ना कि आगे पता नहीं क्या होगा। हमारे जहन में तो बस ये है, पीपल्स पार्टी के जहन में भी ये है कि हम जो है ना IMF से भी कुछ हो जाए, हाँ वो भी इंसानों की सोचे मतलब है ना। तो पीपल्स पार्टी आपने सुना बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि उनको भी बड़ी फ़िक्र है कि जो गरीब लोग हैं वो करेंगे क्या खाएंगे। यहाँ मेरे पास आते तो कहते हैं कि हम लोग सांप तो नहीं है कि हम लोग मिट्टी खाएं, हमें तो खाना चाहिए ना। और यहाँ जो है हम लोग खाने के लिए कैसे खाएं, मतलब इतना महंगा है कि बस देखते हैं। बस इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए या कारकुनों को देनी चाहिए? आपका मशवरा क्या है उनके लिए? मैं ये कह रही हूँ ना कि वो उनसे ही पूछें तो बेहतर हो। मशवरा तो दे सकती है, आप पार्लियामेंटेरियन है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, मतलब मशवरा तो दे सकती है, आप मशवरा क्या देंगी? मैं कहूँगी कि बस सब लोग मिलके अपने वतन का सोचें, हाँ अपना नहीं सोचें है ना, क्या अपने बस मुल्क का सोचें कि मुल्क कैसी हालत में जा रहा है ना। सब लोग बस अपनी सारी बातें भुला के सब मिल के अपने मुल्क का सोचें। आपसे ही पूछूंगा, आप बार बार कह रही है कि उनसे ही पूछें, तो क्या कहेंगी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना और अब जेल बरो तहरीक, क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला या फ़ायदा मिल रहा है? आई डोंट विल सी, हाँ देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन फ़ायदा तो यही तो मैं कह रही हूँ कि अपना फ़ायदा ना देखें, अपने मुल्क का फ़ायदा देखें ना, सोचें इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो रहा है।
का सोचना चाहिए। उनका सोचना चाहिए ना कि उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो तो ख़ास अवाम ही है ना, अवाम के लिए आए हैं। जो भी है जो भी सियासत पे उनको अवाम का पहले सोचना चाहिए, उसके बाद जो है अपना तो मैं कहती हूँ सोचना ही नहीं चाहिए अगर कोई असली पॉलिटिशियन है। अगर खुद पहले जाए तो फिर तो अच्छी बात है, बड़े जेल में कोई मसला नहीं है, लेकिन गरीब आवाम को आगे धकेल के खुद अगर कोई बहाना बना के बैठा रहे और पीछे जो जो कुछ गिरफ्तारियां हुई वो भी बेल करवाने के पीछे लगी हुई हैं, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी आवाम के साथ और ये हम नहीं होने देंगे। क्या इमरान खान को सबसे पहले जेल जाना चाहिए या कारकुनों को? आपका उनके लिए मशवरा क्या है? पहले खुद जाए, फिर उनके साथ जो लोग हैं वो जाए और फिर देखेंगे कि आवाम को ज़रूरत है कि नहीं है, लेकिन पहले उनको आगे बढ़ना चाहिए। अगर लीडर है खुद को कहता है तो लीडर ऐसे नहीं बार बार पीछे हमेशा की तरह यूटर्न ले ले और कहे कि जेल भरो तरीके और कारकुन को आगे कर दे और खुद यूटर्न ले ले, तो ये तो किसी भी लीडर के लिए एक नामुनासिब बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। अवाम के लिए अगर वो कर रहा है तो पहले अवाम को खुद आगे निकले और फिर अवाम को कहे। क्या आपके ख्याल में इमरान खान यू टर्न लेता है और यू टर्न मतलब लेगा? ये तो यही फेमस हो गया पूरी दुनिया में कि यूटर्न खान, तो ये तो हर कोई बच्चे को आप पूछेंगे कि यूटर्न खान तो वो इमरान खान का नाम ही लेंगे। तो ये तो इसमें मशहूर है और हमेशा 4 साल जो उनकी हुकूमत थी उसमें यही तो ये करते रहे हैं कि जो भी अवाम के लिए कोई कुछ सोचा है तो फिर दूसरे दिन उसके यूटर्न ले लिया था। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना और अब जेल भरो तहरीक, क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला या फ़ायदा मिल रहा है? ड्रामेबाजी है, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ भी नहीं है। या जिस तरह हुकूमत में बैठ के भी आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। पहले वज़ीर आज़म हाउस में आते ही कोई उसके भैंसें बकरियां वो बेच दी, फिर आवाम को मुर्गियों पे लेके आया, फिर लंगर खानों पे लेके गया, तो इस तरह की। और फिर वो कहता है कि मैं बस बड़ा लीडर हूँ और इस तरह उसकी जो सियासत है वो सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया तक महदूद है, उसके आगे आवाम में नहीं है। और ये इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल उसको नाकामी भी मिलेगी। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? तो भरे, इस पे तो किसी ने नहीं रोका ना। जब जेल भरना होती है तो जेल भरने के कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पे जब कोई केस बने तो आप अदालतों में जाएं और सामना करें। दूसरा ये है कि ज़मानतें ना कराएं, खुद ब खुद जेल चले जाएंगे आप। तीसरा ये है कि आप आए मैदान में और कहें जी कि हाँ मुझे पकड़ो, मुझे गिरफ़्तार करो और जेल में डालो। ना आप ये कर रहे हैं, ना आप वो कर रहे हैं। ना जब आपने जेबें भरनी थी तो वो भर ली, जब जेलें भरने की बारी आई है तो आप कहते हैं जी मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अब आवाम निकले। तो आवाम क्यों निकले? तो जेल किस लिए भरना है आपने? आपके पास कोई काम है करने को? ना आप असेंबली में बैठते हैं, ना आप को तजवीज़ देते हैं, ना आप अपोजिशन से बात करते हैं, ना आप किसी फार्मूले पे बात करते हैं। आप फ़ौज को गाली, अदलिया को गाली, इलेक्शन कमीशन को गाली, सियासतदानों को गाली, पार्लियामेंट को गाली, सिवाय गालियों के आपको कुछ आता नहीं है। तो इन हालात के अंदर आप जेल भरे या घर बैठे या बनी गाला बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए या कारकुनों को? आपका उनके लिए मशवरा क्या है? करें ना, वो लीड करें। वो ज़मानतें जो हुई है अदालतों को कह दीजिए मेरी ज़मानतें मनसूख करें, वो खुद बहुत गिरफ्तार हो जाएंगे। तो मिसाल नमूना दे ना। वो जब सीने पे हाथ मार के कहते थे कि सबसे पहले मेरा एहतसाब करो, आप छोटा मोटा एहतसाब शुरू हुआ है तो आते नहीं हैं। कहते हैं जी मैं वीडियो लिंक पे मेरे करो। 200 पेशियाँ तो नवाज शरीफ ने भुगती थी अपनी बेटी के साथ, आपने कितनी पेशियाँ भुगती हैं? तो ये कहने की बात है कि आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना और अब जेल भरो तहरीक, क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला या फ़ायदा मिल रहा है? कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। वो बेनकाब हो रहे हैं। उनके पास अब आवाम को देने के लिए कुछ ना, वो अपनी जो 4 साल हुकूमत है ना उसका हिसाब देते हैं, ना अपना नामा अमाल सामने रखते हैं। कभी इसको गाली, कभी उसको गाली, कभी उसको गाली। उनको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होने वाला। और एक आखिरी जुमला ये है कि उनकी सियासत का बाब अब बंद हो। तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान चुकुम जेल भरो तहरीक ऐलान करे दे, स्तासो नज़र से दे। इमरान खान साहब द जेल भरो तहरीक का ऐलान करे दे। हकीकत दा दी ची ठीक था सियासी जमातों ना अखपल मकासद हासिल चरता जेल भरो तहरीक भी चरता
هړتال وي چرته کې بھوک هړتال وي دا مختلف شیونه دي لیکن قتل دا راځي چې آیا پاکستان د داسې خبرو داسې قسم اقداماتو متحمل کېدی شي چې اقتصادي طور باندې د دې په غلطو باندې داسې مواعید دي کړي دي چې نن پونګه بالکل پاکستان چې کوم دی هغه معاشي طور باندې تباہي په کناره باندې ولاړ دی ضرورت دا دی چې موږ دا وخته پاکستان چې کوم دی دته توجه ورکو او بجای د دې نه چې موږ دا ګورو چې حکومت چا دی پاکستان د ټولو دی د پاکستان که ډیفالټ کیږي یا پاکستان معاشي طور باندې تباہ کیږي نو هغې کې دا به نه کتلی کیږي دا نقصان د پی ټی آی دی یا دا نقصان د مسلم لیگ دی بلکې دا نقصان چې کوم دی دا د پوره قوم دی د دې دپاره داسې قسم اقدامات چې کوم دی نو دا ډېر افسوسناک دي دا وخته سیاست نه بالاتر د پاکستان لپاره کردار ادا کول پکار دي ایگزیکټلی بالکل د بالاتر اقدام چې کوم دی هغه ضروري دی سیاست خو ځي راځي پاکستان خدا نه که ستاسو ګوتو نه وځي نو بیا خو نه راځي دې دپاره پاکستان سالمیت تقاضا دا ده چې دې وخته داسې قسمه هتکنډې نه دي استعمالول پکار چې کوم جیل برو تحریک ته او دین علاوه په دې حواله سره عمران خان ته اولنۍ گرفتاری ورکول پکار ده یا کارکنانو ته ستاسو ورته مشوره څه ده बस वही हाथी के पाँव में सब का पाँव इमरान खान की गिरफ्तारी वर्की और वर्कर ची कुम दिन वगैरह इम्तिहान के ना चाहिए दा जमा पर ख्याल डेरा फैसला भी حقیقي ازادي لانګ مارچ او هغه نه پس د اسمبلی تحلیلولو چې کومه معامله وه او اوس چې کوم جیل برو تحریک ته د دې نه د ستاسو په خیال باندې عمران خان ته فایده میلاو شوې ده یا فایده ورته میلاویږي بس عمران خان چې کوم دی هغه دا کوشش دی چې دا خپل چې څومره ورکر دي کارکون دي یا پارټۍ خلک دي دا په داسې امتحانونو کې واچي چې دې سبا له سر نه اوچتوي دا وخت څومره اقدامات یې کړي دي هغې اثرات چې کوم دي هغه د پارټۍ او پارټۍ د خلکو خلاف تللی دي نو ډېر بچګانه فیصلې دي او پته نشته چې څوک خلک دی چې کوم دوی ته داسې قسم تجاویز ورکوي بهرحال اوسه پورې خو د هغه څوک فیصله چې کوم ده نو هغه کارګر ثابت شي پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان چې کوم جیل برو تحریک اعلان کړی دی ستاسو نظر څه دی دا خو د هغه پولیټیکل سټرګل دی او د یو پولیټیکل پارټي او پولیټیکل لیډر په حیثیت سره کانسټیټیوشن تحت هغه ته د دې ازادي ده چې هغه خپل پولیټیکل سټرګل جاري وساتي او دستور او د پاکستان قانون هغې ته اجازت ورکوي موجوده صورتحال کې چې کوم د ملک معیشت دی یا چې کوم د IMF سره معاهده چې کوم حالات روان دي په دې کې جیل برو تحریک مطلب ضروري دی وده کړی شي په دې موجوده حالاتو کې چې کم IMF سره دی اوس پیکیج ډیل وکړو د هغې په نتیجه کې به ډېره زیاته ګراني راځي یو طاقتور نوې لهر به دا د مهنګایي راځي او د عوامو ملا ماته شوله اشیای خوردنوش چې چینی اوړه غوړي ریجې دالونه دا د خلکو د وس نه بهر دي یو طرف ته دا صورتحال دی بدترین غربت دی لا ان آرډر صورتحال خراب دی دهشتګردي ده بل طرف ته حکومت کابینه کې اضافه کوي د دنیا له ټول نه غټه کابینه ده 95 وزرای پرونه بل ورځ برتي کړه 83 تعداد ورسېد اوس 14 نور هم چې کوم درخواست و هغه هم منظور شوی سنچري پوره کوي خپل وزیر اعظم ته به د خپل وزیرانو نمونه نه یاد هغه به په شکل باندې نه پیژني نه دا ظلم دی د دنیا د ټول نه لویه کابینه او بدترین قسمه نااهله نه دی کومه کارنامه کړې حکومت دی کم خلکو له ریلیف ورکړی دی دا خو په کار دا چې کم کی او کم از کم د 12 نه سیوا وزیران نه په کار نو دا بالکل ظلم دی او په دې حالاتو کې دا حکومت بالکل په کار دی چې الیکشن طرف ته لاړ شي یو الیکشن په کار دی چې د هغې په نتیجه کې فیر ټرانسپیرنټ فری الیکشن وشي یو نوې انتظام راشي او هغې سره عوامي مینډیټ یو هغې بیا د بنیادي فیصلې وکړي عمران خان ته اولنۍ خپله ګرفتاري ورکول پکار ده یا د کارکنانو ستاسو ورته مشوره څه ده لیډر خو همیشه د فرنټ نه لیډ کوي او جنون لیډر چې او بالکل هغه که فرض که کم خلکو ته د جیل برو تحریک دعوت ورکوي یا د پولیټیکل سټرګل دعوت ورکوي نو هغه نه د فرنټ نه هغه لیډ کول پکار دي او په خپله ګرفتاري ورکول پکار دي او ورسره نورو خلکو له هم چې کوم د هغه خلک دي چې وفاقي کابینه کې پاتې شوي دي وزرای اعلی پاتې شوي دي صوبایي کابینه کې پاتې شوي دي دا نه چې د حکومت په ایوانونو کې به کم خلک عیش و عشرت په هغې وکړي هغه وخت هم کارکون محروموي او وروستو چې بیا کله د امتحان وخت راشي نو هغه وخت هم کارکون جیل ته ځي نو اوس پکار دي چې د هرې علاقې کارکنان د خپل وزیر او د خپل MP او د MNA په قیادت کې جیل ته لاړ شي حقیقي ازادي لانګ مارچ و هغې نه پس د اسمبلی د تحلیلولو معامله او اوس چې کوم جیل برو تحریک د ستاسو په خیال باندې عمران خان ته د دې نه څه فایده میلاو شوې ده یا فایده به ورته میلاو شي
ګوره چې د هغه چې کومه پولیټیکل سټریټجي ده هغه زیګ زیګ ده او هغه انپریډکټیبل ده او هغه ته په هغې ټرسټ نشي کولی تر اوسه پورې چې کوم د هغه پولیټیکل سټریټجي ده هغه خپله کنفیوز ده د هغه په ذهن کې خپل هم کنفیوژن دی هغه ته یو کلاو ټارګیټ او یو کلاو سټریټجي داسې ښکاري چې هغه سره نشته دی خپله یو د کنفیوژن شکار دی نو ما ته خو نه ښکاري چې دې پارټۍ ته تر اوسه پورې څه فایده شوي पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए ये सियासी हक़ है उनका, लेकिन ये कि अभी तक जितने धरने रैलियां हो रही हैं उससे कोई नताइज सामने निकल के नहीं आ रहे हैं। एक सिवाय एक म्यूज़िकल चेयर जैसी चीज़ हो रही है कि उन्होंने कुछ कहा तो हुकूमत की तरफ से जवाब मिल गया, हुकूमत ने कुछ कहा तो उन्होंने जवाब दे दिया। हमारे कि हम जमहूरियत के हामी हैं, यही वजह है कि देखिए हम पिछली हुकूमत में भी हम इत्तेहाद किया, हमने आज की हुकूमत के साथ भी इत्तेहाद किए हैं, लेकिन हम अवामी नुमाइंदे हैं, नादान दोस्त नहीं हैं। तो हम इमरान साहब से भी कहेंगे कि ये अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दीजिए आप, और हुकूमत वक्त से भी कहेंगे कि मफाहमाना मुखलिसाना दावत दीजिए और आपस में बैठ के बात कीजिए ताकि कुछ अवाम का भला हो सके। अवाम को इन धरनों रैलियों से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए धरनों की कहानी वही है ना कि टूट फूट हो जाएगी, कुछ हंगामा हो जाएगा, कुछ FIR कट जाएंगे, फिर नया हंगामा शुरू हो जाएगा, भाई लोग जेल में ले गए, फिर छूट जाएंगे। अवाम कह रहा है रोटी कहाँ है, सालन कहाँ है, मतलब अवाम बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। और ये जो कुछ पेश आई है मुश्किल डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने वाली, वो इसीलिए आ रही है कि अवाम खाली हाथ हैं। क्या इमरान खान को सबसे पहले खुद गिरफ्तारी देनी चाहिए या कारकुनों को? आपका उनके लिए मशवरा क्या है? मेरे ख्याल है खुद गिरफ्तारी दे दें। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना और अब जेल बरो तहरीक, क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला या फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, शुरू में ऐसा ज़रूर महसूस हुआ था, लेकिन इससे उनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो पहले भी इस बात को समझने से कासिर थे कि उनके इर्द जितने लोग हैं वो सारे दोस्त नहीं हैं, उनको मशवरा देने वाले सही नहीं थे सारे, जिसकी वजह से नुकसानात भी हुए, गलतियाँ भी हुई, लेकिन वो ख़ुद बेहतर करना चाहते थे और शायद बेहतर समझ के एक के बाद एक स्टेप उठा रहे हैं, लेकिन उनके एडवाइज़र सही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? यार देखिए, मेरा ख्याल है अब तो लोगों को समझ आ गई है कि वो एक बुज़दिल आदमी है और प्लास्टर वो प्लस्तर नहीं होता वो लगा के बैठा हुआ है। अब मेरा काफ़ी हो गया, अगर इतनी है हिम्मत तो लीडरशिप दिखाए, बाहर आए और बिल्कुल पहले सबसे पहले आप यहाँ दीवारें आपने फैलाते हुए देखा ना इसको, वो 2014 के बाद। मैं समझता हूँ कि ये अभी कहता जब इलेक्शन होंगे तब मैं बनूँगा, तो हम कहते हैं आए बिल्कुल बिस्मिल्लाह। लॉन्ग मार्च भी आपने किया, हमने उसमें करें, तो अब भी कहते हैं करें। इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए या कारकुनों को? आपका उनके लिए मशवरा क्या है? नहीं, ये समझता है कारकुन उसका ईंधन है, ये इसको आने चाहिए, इसकी बीवी सियासत में उसको भी आना चाहिए, फराह गोगी को भी आना चाहिए, जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। वो बेचारे वर्कर मार खाएं और ये करप्शन करें, अरबों रुपया कमाएं, हीरे और घड़ियाँ जो हैं वो बेचें। तो मैं समझता हूँ कि इनको आगे आके गिरफ्तारियाँ देनी चाहिए। पीछे ना आप वो ज़मान पार्क में बैठा ना रहे, बाहर निकले तो सही ना। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना और अब जेल बरो तहरीक, क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला या फ़ायदा मिल रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, क्योंकि लोग समझते हैं ये एक बेसूल और झूठा आदमी है और ये हर रोज़ अपना स्टांस बदलता है। इसने लॉन्ग मार्च में पता, कभी कहता था ये लॉन्ग मार्च अरशद शरीफ के लिए कर रहा हूँ, कभी कहता था ये मैं हकीकी आज़ादी, अब तो कभी कहता था अमेरिका की गवर्नमेंट है, कभी कहता था इस्टेब्लिशमेंट ने किया है, कभी ये इसका तो कोई आप देखेंगे तो आपको समझ आ गई कि ये शख्सियत या इसका करैक्टर है क्या। तो अब लोगों को मेरा काफ़ी समझ आ गई है और इंशाल्लाह आप देखें जब इलेक्शन होगा तो इसकी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। इन सारी चीज़ों को मिलाकर क्या आपके ख्याल में इमरान खान को फ़ायदा अगर ना मिला तो मुल्क का कितना नुकसान हुआ? नहीं, मुल्क तो बच जाएगा अगर इमरान, हाँ ये बात है जो इसने काम किया 9 महीने या उससे पहले 2014 से जो शुरू किया था, मैं कहता हूँ वो बड़ा डैमेज किया है इसने मुल्क की मईशत को। माशी जो हमारी मईशत थी वो ख़राब हुई है, माशी हालात ख़राब हुए हैं और अदारे भी इसने कमज़ोर किए हैं, मुल्क को ओवरऑल मुल्क को कमज़ोर किया है इसने।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? जेल भरो तहरीक से पहले इमरान खान ने जितने ऐलान किए थे, जिसमें उनकी लॉन्ग मार्च थी, शहर बंद कर देने वाली उनकी जो तहरीकें थी, अब ये आखिरी जो लॉन्ग मार्च का या जेल भरो तहरीक का इन्होंने कह दिया, ये तमाम चीज़ें उनकी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आ रही हैं। अगर उनको इस हुकूमत से निकाला गया था तो इस सिस्टम ने कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे उनको निकाला था। आज वो असेंबली में आना पसंद नहीं करते। जिस वक्त अपोजिशन लीडर थे उस वक्त भी अंदर नहीं आते थे, फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। जब रिज़ाइन कर दिया तो असेंबली का टेन्योर पूरा हुआ है, अब वो कहते हैं हमें वापस आने दिया जाए। तो खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें तसलसल तो है नहीं, यू टर्न्स बहुत ज़्यादा लेते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर को मेरा ख्याल है सोबर होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए और जो पॉलिसी ले उस पर खड़ा होना चाहिए। इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए या कारकुनों को? आपका उनके लिए मशवरा क्या है? देखिए, इस तरह तो कोई पार्टी नहीं चलती। अगर सरबराह जो लीड कर रहा है, जिसने पॉलिसी बनाई है, जिसने ऐलान किया है, अगर वो ख़ुद अपने घर में बैठता है और सिर्फ कारकुनों को कहता है कि आप जेल भरो तहरीक में चले जाएँ, वो तहरीक तो बुरी तरह नाकाम होगी। वो बिल्कुल इनकरेज नहीं होते। आपके जो वर्कर्स होते हैं वो उसी वक्त होंगे जिस वक्त लीडर जो है खुद पहले जेल में जाके बैठ जाए, अपनी कैबिनेट को कहे पहले जेल में चले जाए, तो सारे खुशी से चले जाएंगे। कि आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर तहरीक अदम एतमाद और बाकी जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, और ख़ास कर जो अभी जेल भरो तहरीक असम्बलिया तहलील का मामला, तो क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला या नुकसान? मेरा ख्याल है बहुत नुकसान हुआ है इसका पीटीआई को। आज पीटीआई के आप मेंबर्स को, पार्लियामेंटेरियंस को अगर आप मिल के देखें तो वो बहुत परेशान है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक पॉलिसी के अंदर जो चेंज होती है ना, वो मैंने तो किसी लीडर की नहीं देखी। मेरा भी ये असेंबली में दूसरा टेन्योर है, लेकिन इस 70 साल में जो मैंने पहले पॉलिटिक्स देखी है, जितने भी लीडरान आए हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, ये तो कभी नहीं देखा जो इमरान खान कर रहे हैं। डैम के भी ऐलान किए, हम ये कर देंगे। मुझे बता दें उनका कौन सा ऐलान जो है ना वो मुकम्मल हुआ? तो ऐलान तो वो कर रहे हैं। कमाल है जो अदालतों के आने पर अदालतों में जाते नहीं हैं और जेल भरो तहरीक देखें, कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो अगर मैं ये बात कह रही हूँ कि मैं जेल भरो तहरीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊँगी, उसके बाद मेरे लोग जाएंगे। तो मुझे बता दें, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, ज़मान पार्क में क्या है, बाहर धरने में लोग बैठे हुए हैं, ख़वातीन स्पेशली, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पर ख़वातीन की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम का है, तो कोई भी उनको हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। आप बात कुछ और कर रहे हैं, आप दिखा कुछ और रहे हैं, आपका अमल कुछ और है। तो मुझे बताएं, उनकी बहुत सी लफ्ज़ी बातें हैं, बड़े लफ्ज़ी ऐलानात हैं, और मुझे लगता है ये जेल भरो तहरीक भी एक लफ्ज़ी ऐलान के अलावा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये, आप जलसे में पहुंच जाते हैं। पहली बात मुझे ये बताएं, एक बंदे को गोली ही नहीं लगी तो 6 महीने का उसका ऐसा प्लास्टर है जो गोली लगने वाले से भी 2 हाथ ऊपर है। तो मैं मतलब हम इस पाकिस्तान का, इस ऐवान में ये मौजूद रहे और इस ऐवान के प्राइम मिनिस्टर रहे, इस पाकिस्तान की तारीख़ में ये लिखा जाएगा कि इमरान खान जो है वो जितना भी टेन्योर उन्होंने गुजारा वो इस ऐवान के और इस पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है। मुझे उनको कोई हरकत बता दें प्राइम मिनिस्टर वाली कोई है कि नहीं। ऐलानात उनके जो है ना वो ऐलानात ही हैं। देखें, जब मुश्किल वक्त आता है तो इकट्ठे बैठना भी बहुत ज़रूरी है। आपको भी पता है वो तो हाथ नहीं मिलाना चाहते, वो ये नहीं, वो जो शख्स अदालतों में हाजिर नहीं हो सकता, जो शख्स ये बात कर रहा हो, आप मुझे बताएं जी मैं इस वक्त कुछ नहीं हूँ, क्या नहीं हूँ, वो ऑफिस होल्डर नहीं हूँ, तो वो जो बेटी का, जो ममनुआ बेटी की जो बात हो रही है, मुझे आप बताएं, मतलब आंखों पे लोगों ने पट्टी तो नहीं बांधी हुई, सो देख लेते हैं, आप भी यहाँ पर हैं, मैं भी यहाँ पर है, देख लेते हैं। मैं तो कहूँगी इमरान खान साहब अगर ये चाहते हैं कि जेल भरो तहरीक चले तो फिर सबसे पहले वो जेल में जाएँ, उसके बाद उनके जो जितने भी कारकुन हैं। भरो तहरीक के लिए कारकुनों की रजिस्ट्रेशन जारी है, तो क्या इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए या कारकुनों को? आपका उनके लिए मशवरा क्या है? मशवरा अल्लाह करे वो सुन लें। देखें, आप
आगे आगे लीडर होता है, फिर पीछे आवाम होती है। जो नज़रिया होता है वो आगे होता है और नज़रिया देने वाला आगे होता है। तो आपके सवाल में ही और मेरी इस जुमले में ही इसका जवाब है कि इमरान खान को पहले खुद उस खाई में खाई तो नहीं कहूँगी, चलें जी, जेल में पहले वो खुद जाएँ, फिर उनके साथ पीछे उनकी आवाम आ जाएगी, उनके सपोर्टर आ जाएंगे। कुर्बानी मुझे बताएं, क्या कुर्बानी दी मुझे बताएं। उस शख्स की तकरीरों में से सिर्फ गालियाँ, अपोजिशन को बदतमीज़ी कहना, वो निकाल दें। मुझे बता दें उस बंदे की तकरीर में क्या वापस बचता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना और अब जेल भरो तहरीक, क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला या फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, वो एक ऐसी खुद बनाई हुई दुनिया में रहते हैं और उनके लोग उनको उस दुनिया में रखते हैं और वो खुद भी। देखिए, मुझे बताएं, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो वो पिंकी, उनकी जो मिसेस थी, वो उनके पास बैठी हुई थी और टीवी पे वो बात देख रहे थे कि जो डॉलर है वो ऊपर चला गया। तो उन्होंने कहा जी मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो उनकी मिसेस ने उनको बताया कि राइट नाउ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। मुझे आप बताएं, आपके पास ये इख्तियार है, आपने माइक पकड़ना है, आपने सवाल करना है और मेरा काम है मैंने जवाब देना है। तो मुझे बताएं, एक प्राइम मिनिस्टर मतलब सोया हुआ इंसान है जिसको ये नहीं पता कि वो टीवी पे देख के ये क्या बात कर रहा है। आप घर में बैठे हों, आप किसी महफिल में बैठे, चले जी महफिल को छोड़ दीजिए, जब हम महफिल में होते हैं तो हम पॉलिटिशियंस ही होते हैं, ठीक है। हम घर में ही बैठे हुए जो हैं, आप टीवी देख के हम ये बात कर रहे हैं। तो मुझे बताते उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल हालात से गुजर रहा है। उनको इस चीज़ से है कि मैं दोबारा जो है ना, मुझे जिस तरह निकाला गया है मैं दोबारा आऊँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ। मेरा मानना ये है, इंसान ज़मीन पर बैठ के भी बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के लिए काम कर सकता है। बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। इमरान खान आए यहाँ पर ईवानों में आता, पहले रिज़ाइन दिए गए, फिर क्या कहते हैं, इतनी सीटों के ऊपर अकेले मिस्टर इमरान खान साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया। यानी सॉरी टू से, मैं क्योंकि हराम का पैसा तो नहीं है ना, पब्लिक की जो इलेक्शंस हुए हैं, जब इलेक्शन मुझे बताएं, कोई अक्ल को हाथ मारना, क्या जुमला बोलूँ मैं इस बंदे के लिए? अल्लाह में इसको हदायत है, मैं इसके बारे में ये कह सकती हूँ। कह रहे हैं कि हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग हैं, तो फिर हुकूमत आप लोगों की है, कहाँ रखेंगे इनको? करोड़ों लोग वो कह रहे हैं, ठीक है, तो आ जाए, हम भी देख लेंगे, हम टेंट लगा लेंगे। पहले करोड़ों लोग लेकर तो है ना जेल भरो तहरीक में लोग आएंगे तो हम उनको रख भी लेंगे। वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो इनका काम नहीं है। ये शुरू तो करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? देखें, बात अगर वो इसका मतलब ये है कि वो अदालतों पर उनका यकीन नहीं है, और एक तरफ तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हर शहरी चौके आइन कानून के मुताबिक जो है हमारी अदलिया भरपूर तरीके से काम कर रही है। और अगर आप समझते हैं कि किसी ने कहा जेल भरो तहरीक शुरू करें, तो मीनिंग देयर बाई कि जो लोग ज़मानतों पे हैं वो अपनी ज़मानतें जो हैं, जो जामिन देते हैं, वो वापस लेकर जेल जाना चाहते हैं ताकि जेल भरी जाए। मैं तो बासियत वकील जो है यही समझता हूँ, अगर इस किस्म की किसी मुलज़िम की ये सोच है तो यकीनी तौर पे जो है अदालत तो जुडिशल ऑर्डर होगा कि इस बंदे को जेल में डाल दें, फिर वो जुडिशली ही दोबारा जो है वो रिलीज़ का ऑर्डर करेगी। क्या इमरान खान को सबसे पहले गिरफ्तारी देनी चाहिए या कारकुनों को? आपका उनके लिए मशवरा क्या है? देखें बात ये है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हूँ, मैं किसी दूसरे आदमी को मशवरा मैं क्यों दूँगा? हर बात अपनी सोच के मुताबिक वो इंडिपेंडेंट है, तो मेरा मशवरा देना उनको बनता नहीं है। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना और अब जेल भरो तहरीक, क्या आपके ख्याल में इमरान खान को इसका फ़ायदा मिला या फ़ायदा मिलेगा? देखें, मुझसे अगर ओवरऑल सूरत हाल पूछते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जितने भी इक़दाम हैं उनसे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचा है। आवाम जो हैं वो परेशानी का शिकार हुई हैं और उन्होंने जो भी स्टेप उठाया उससे बाद में उन्होंने बैकआउट किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसके ऊपर आपको हमें बहस करके वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी। ख़ान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया है। सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला मैं एज़ ए सेनेटर अपने कप्तान के हुक्म पे मैं सबसे पहले गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हूँ। ख़ान साहब के जो उसने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया उसके बाद हमें तो जेल अपना घर लगने लगा है। क्या सबसे पहले गिरफ़्तारी इमरान खान को देनी चाहिए या कारकुनों को, आप लोगों को? आपका मतलब क्या मशवरा है खान साहब के लिए?
देखिए जी, हम सारे जितने भी पीटीआई के सेनेटर्स हैं, एमएनएज़ हैं, एमपीएज़ हैं, हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम गिरफ़्तारी दे दें। हमारा लीडर ने ख़ुद भी कहा है कि सबसे पहले गिरफ़्तारी मैं दे दूँगा ना। तो हम लोग तो देखिए, जेल तो हमारा घर है, हम जेलों से डरते नहीं हैं, जेलों से ये लोग डरते हैं। हमारे ख़ान साहब के पीछे कितने इन्होंने मतलब मुक़ादिमात बनाए, और ये ज़मान पार्क सियासत का महवर बन गया है। आपको पता है ख़ान साहब एक झोंपड़ी में भी रहे, वो भी एक बस्ती बन जाता है, ठीक है। ये लोग तो यहाँ से भाग गए थे, ख़ान साहब यहाँ से भागा तो नहीं है, अपने घर में बैठा हुआ है। इनमें इतनी हिम्मत है तो जाए उसको गिरफ़्तार कर ले, देखें। की आज़ादी लॉन्ग मार्च और फिर असम्बलियाँ तहलील करना और अब जेल भरो तहरीक, क्या आपके ख्याल में इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका फ़ायदा मिला या फ़ायदा मिलेगा? देखिए जी, ये इससे पहले भी काफ़ी पार्टियों ने, काफ़ी मतलब दूसरे ममालिक में भी ये जी बरो तहरीक के जो है ये मूवमेंट हुए हैं। ये कोई वो बात नहीं, जमहूरियत का ये हुस्न है। तो ये जो है हम लोगों ने जो असम्बलियों, देखिए हम 2 हफ़्ते की बात है, इंशाअल्लाह ताला ख़ान साहब रोटों में होंगे, इंशाअल्लाह ताला आवाम के साथ होंगे। आइन के लिए हम लड़ेंगे, इलेक्शन जब के लिए हम लड़ेंगे, तो हमारा तो ये मिशन है, हम जेल से डरते नहीं हैं। कतुन को द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान द जेल बरो तहरीक पे ऐलान बांधे द पार्लिमानी मेंबरानो तफसीली खबर तासु वावरदी चकुम हुकूमती रहनुमा दी आगुई हम वो च फौरी तोगा द दुई खपले गिरफ्तारी चकुमे दी आगा द वर्कड़ी ख्वावल द इमरान खान हम पखपला गिरफ्तारी वर्कड़ी पागे ना पस द कारकुनानो द पारा हम मूंग बंदोबस्त काऊ दे सरासरा चकुम द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटरान दी या चकुम पार्लिमानी मेंबरान भी अगुई हम वो चमुंग बिल्कुल तैयार यू और मूंग कोशिश थे च अवल मतलब पखपला बंदे मूंग गिरफ्तारी वर को आगे ना पस पर चकुम द मूंग लीडर दे आगा बा हम गिरफ्तारी वर कभी द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे पल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सराव से अल्लाह पामा।